الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلی اللہ کل غالب ومطلوب كل طالب كرارا غير فرار صاحب ذوالفقار قسيم الجنة والنار وفاته خيبر خندق بدر حنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم والی مجلس کی مجلس کو قبول فرمائے. آپ تمام کنیزان زہرا کی شریف قدم حاضری کو مالک قبول فرمائے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم مظلوم کربلا کے. جس شادان کے دل میں جتنا علی بستا ہو تری بلند سلوات. اللہم صلی علی علی کے ذکر سے کہ علی کا ذکر آدم نے کیا تو آدم کی توبہ قبول ہوئی اور خاتم نے کیا تو خیبر فتح ہوا. ذکر علی عبادت ہے, جان میں آ جاتی ہے, جان علی کہنے سے ختم ہو جاتا ہے, قرآن علی کہنے سے نسل کی ہوتی ہے پہچان, علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان, علی کہنے سے. نعرہ حیدری یا دیوار کسی غیر پہ کھلتی ہی نہیں, دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی ہے. نام علی آ جاتا ہے چہرے کھل جاتے ہیں. ہم کو علی کے عشق نے عالی بنا دیا, خطرہ کے ہم حسین نے دریا بنا دیا. یہ ماتمی لباس کیا ہم نے زیب تن, ہم کو غم حسین نے کعبہ بنا دیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جو ہمیں قسمتوں سے ملا ہے, ماں کی شرافت سے ملا ہے. یہ عشق اہل بیت ہمیں بہت, کیونکہ غدیر میں تو سب کو بتایا گیا تھا علی کو اٹھا اٹھا کر, لیکن اندھوں میں دیکھا ہی نہیں علی کو. جو یہاں کے اندھے ہوتے ہیں, یہاں کے اندھے نہیں, جو یہاں کے اندھے ہوتے ہیں, ان کا جو دل کالا ہوتا ہے, دل کے اندر ان کی عداوت, کینہ, حسد, بغض, منافقت ہوتی ہے. انہیں نہ قرآن میں علی نظر آتا ہے, نہ انہیں نبی کے دوست پہ نظر آتا ہے. جو باتیں نہ نظر آنے والی ہے وہ نظر آ جاتی ہے, حجرے کی باتیں نظر آ جاتی ہے, میدان کی باتیں نظر نہیں آتی. اب یہ توفیق کی بات ہے, اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی. اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح توفیقات میں اور اضافہ کرتے جائیں, تاکہ جو وقت تعلیم پردے غیبت میں ہے, جو وقت محمد سے لے کر حسن عسکری تک اللہ کی طرف جو غیبت میں ہے, 2-4 منٹ, کیونکہ یہ علماء کا گھر ہے, یہاں علماؤں کی نسلیں گزری ہے. انشاءاللہ اللہ آنے میں اور ان کی نسلوں میں اسی طرح دین کی خدمت کا جذبہ عطا کرے. امام کا ذکر ممبر کی بلندی سے نہ ہو اور اس گھر میں نہ ہو, کیونکہ امام زمانہ ہی تو ہے. آپ کو ظاہر میں یاسمین آقا نے بلایا ہے, لیکن امام زمانہ نے حقیقت میں بلایا ہے. امام چلا رہے ہیں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. کیوں کہ مجلس ایک ایسا معجزہ ہے عزیزم کہ مجلس بارش میں بھی نہیں رکی. 8 ہفتے دیکھیے, عرفان ہونی چاہیے, اس نگاہ ہونی چاہیے. اتنی بارش میں تبرک کیسے بنا, لوگ کیسے آئے, مجلسیں کیسی ہوتی رہی. یہ سال آپ دیکھیں کتنی بارش میں ایک مجلس بھی رکی نہیں. یہ معجزہ ہے. کیوں, اگر انسان کرا رہے ہوتے تو رک جاتی. امام زمانہ کرا رہے ہیں. اسی طرح کچھ سال پہلے چلے جائیں, وائرس میں سارے کام دوسرے مذہب کے جتنے ریلیجیس کے پروگرام تھے سب ختم, لیکن محرم آتے ہی کس طریقے سے ٹوٹ پڑا تھا مجمع.
बीवी के अलावे में किस कदर पब्लिक छोटे छोटे बच्चों को यानी ये मंजर क्या बताते हैं। हम यूं ही नहीं कहते है हाथ में नज़िल्ला, हम यूं ही नहीं कहते या लैतनी, जब वक्त आता है तो हम आके बताते हैं, पड़ती बारिश में आके बताते हैं, कर्फ्यू में आके बताते हैं, वायरस में आके बताते हैं, और नोटबंदी रात में हो गई इमीडिएटली सुबह मजलिस करके बताते हैं कि जो कौम वो कौम पीछे हट नहीं सकती जिसका इमाम जिंदा हो। ये सब काम इमाम ज़माना करवा रहे, इसलिए ये सब काम होते रहते हैं। इसमें खुशनसीबी की बात यह है कि हम उसका ही हिस्सा है, हम सब। और अजीज मजलिस कराना आसान है क्योंकि इमाम करवाते हैं, नाम हो जाता है कराने वाले का, और कुछ नहीं। करवाते तो इमाम है। दौलत किसने दे रखी है, औलाद किसने दी है, हयात किसने दी है, सेहत किसने दी है, मर्तबे किसने दिए हैं, सब कुछ सांसें कौन दे रहा है, इमाम ज़माना और कौन। सब कुछ इमाम ज़माना का सदका है जो हमें इरसाल हो रहा है, मिल रहा है, नसीब हो रहा है। जब तक वो नहीं चाहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, और मलकुल मौत भी उन्हीं के कहने पे आएगा। यानी तब तक जब तक मेरे मौला नहीं चाहेंगे हमें कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकता। ये इमाम ज़माना की ताकत है, ये इमाम ज़माना के इख्तियारात है। इसीलिए कहते कोई लेकर वो परेशानी की क्या बात है। मेरे मौला से कहे अस्सलाम वालेकुम खलीफतु वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान के मौला क्या मुश्किल है मेरे लिए। एक बहुत बड़े जो तकरीबन जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तकरीबन बड़े बड़े लोग, और जो बिल्कुल खास इस्लामिक होते हैं, खास इस्लामिक होते हैं, खास इस्लामिक होते हैं, उनकी मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। इस्लाम से वाबस्तगी इम्तिहान देना पड़ता है। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अबे कालिम में दीन से बेचारे मुझेज़ा जो ये इमाम ज़माना का पढ़ के मौला के फज़ाइल आपको सुनाएंगे, क्योंकि आप लोग आमादा रहते हैं मौला के फज़ाइल सुनने के लिए, तो हम आपके सबके इम्तिहान भी नहीं लेंगे। बहुत बहुत गरीब और ज़्यादा बच्चे किस्मत से। अब जब ज़्यादा बच्चे हों तो फिर और घर भी गिराएगा। देखिए मौला इमाम ज़माना चाहे तो एक पल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब वो किराया भी नहीं दे सकते थे बेचारे, इतना भर गया, इतना जम गया, 1 साल तक का हो गया। मकानदार ने कहा आप हमारे घर से घर खाली कर दे, तो कहा नहीं मुझे कुछ मोहलत दी, मैं फ़ौरन आपका पैसा अदा कर दूँगा। उन्होंने कहा नहीं हम राज़ी नहीं है। जब ये कहा ना हम राज़ी नहीं, उन्होंने फ़ौरन बाहर जाके फुटपाथ पे अहाता घेरा और अपना पूरा सामान और अपनी फैमिली को लाके ऐसी कपड़े का टेंट शामियाना बनाया, उसमें खड़ा कर दिया। और वो किसी को नहीं बताते थे कि मुलाकात इमाम ज़माना कई बार हो चुकी थी, कई बार मिल चुके थे। अब तो इतनी मुश्किल आई, रोड पे सामान बच्चे सब लेके कह रहे हैं। दिल ने कहा किसे पुकारे, उसी को पुकारे जो मौला है। बस ये कह रहे कि अभी कहा नहीं, सामने इमाम ज़माना ठहरे हुए नजर आए। परेशानी में है और इमाम उन्हें देख के मुस्कुरा रहे थे कि इस हालत में। तो वह मौला इतनी उनकी गुर्बत थी कि मौला से वो मज़ाहिया गुफ्तगू भी कर लेते थे। उन्होंने कहा मौला आपको तो आप मालूम है मुझे, आपका भला घर उजड़ गया, सब कुछ मैं जानता हूँ, बहुत तकलीफ है, लेकिन मौला जो तकलीफ अब मैं गुजार रहा हूँ वो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप तो पूरी ज़मीन के शहंशाह, पूरे आसमानों के शहंशाह, आपको क्या मालूम मौला किराए के घर का दर्द क्या होता है। तो मौला मुस्कुराए, शाम तक इंतजार कर। ऐसा इंतजाम करवाया, शाम तक एक बड़ा घर उनके नाम करवा दिया। इमाम के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई कम बस दिल से पुकारने की जरूरत है। जुबान से जब तक कहेंगे अल्लाह जल वो नहीं आएंगे। कभी यहाँ से कहो, दिल से कहो, दिल को पाक करके कहो अल्लाह जल। वो कहते हैं कि हम तो तुम्हें देख रहे हैं, तुम ही तो पीट करके भाग रहे हो, हम तो तुम्हारा तुम हमारे मुंतजिर नहीं हो, हम तुम्हारे मुंतजिर है। तुम ये गुनाहों के पर्दे पाक करो और हमारे करीब आ जाओ, हम तुम्हारे करीब आ जाएं, फिर ये गलत के पर्दे खुद ब खुद उठ जाएंगे। आप ही जाओ के इंतजार में हो, मुंतजिरों की कतार में हो, वक्त नज़ार न आ जाए कहीं, मौला आपके शौक़े दीदार में हो। ज़माना मेरा क्या बिगाड़ेगा, आपके खींचे हुए हिसार में हो। जितने गाफिल हैं बेकरार हैं रबाब, याद मौला में मैं करार में हूँ। दरबारे कायम जिंदाबाद, दरबारे कायम जिंदाबाद, सारे कायम जिंदाबाद, सारे कायम जिंदाबाद। नारे हैदरी, नारे सलवात, सल्ले अला मोहम्मद। एक बार आ जाओ, 100 बार कुर्बान ये जिंदगी, एक बार तमन्ना इमाम की माँ। और ये करबला की याद की तो इसीलिए है कि हम अपने वक्त इमाम से अपने जुड़ने की कोशिश करें।
फुर्बतें पाने की कोशिश करें, सबकत ले जाने की कोशिश। कंपटीशन दुनिया में लगाने का फायदा कुछ नहीं, दुनिया आएगी नहीं कि वहाँ के इश्क में कंपटीशन लगा के उठे यहाँ से, मैं अपने मौला के इश्क। देखिए मोहब्बत है फिर इश्क होगा, ये मंजिलें हैं, मोहब्बत है फिर इश्क होगा, इश्क होगा तो खुदा तो मोहब्बत मानता है जी, मोहब्बत होगी तो इश्क की मनाजिल। मोहब्बत में थोड़ा थोड़ा सुधरता है इंसान में, इश्क में तो फिर बौरान हो जाता है। इश्क के जलवे देखना है, कलंदर को कड़ाई में हफ्ताली 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 पता नहीं चला, गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इश्क देखना है शम्स, जो जितने उलमा जितने ये वली अल्लाह गुजरे हैं इनके हयात तैयबा पढ़ के देखिएगा। शम्स तबरेज़ जलाल में आए, जब उन्हें गोश्त भूनने के लिए कोई अंगार नहीं दे रहा था तो कहा कि तू भी शम्स है, मैं भी शम्स हूँ, ऐ सूरज उतर जमीन पर। और ये गोश्त भून के लिए सूरज ने नीचे उतरना शुरू किया। जो अंगार देने से घबराए वो चिल्ला के कहने लगे उठा दो, मर के हम ना जल के मर जाए। यानी अली का नौकर क्या कर सकता है? सलवात पढ़ दे इसीलिए कहा ना मदीनतुल इल्म अली बाबूहा में शहर इल्म अली उसका दरवाजा है। जो दरवाजे चौखट पे अली की मोहब्बत में दिल के साथ झुकेगा उसे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगी खैरात। वो शहर जिसके कदो खाल का सिंगार है इल्म, वो शहर जिसके कदो खाल का सिंगार है इल्म, वो शहर जिसके अली का शहर इल्म का दरवाजा। अब चले अना मदीनतुल इल्म में पढ़ते हैं ना दुआ नबा में, यहाँ वहाँ बहुत जगह आता है। अब तसव्वुर में चले, वो शहर जिसके कदो खाल का सिंगार है इल्म, वो शहर जिसकी महकती हुई बहार है इल्म, वो शहर जिसके खंबर हो फिजा का भी विखार है इल्म। बशर को ऐसी बुलंदी वहाँ से मिलती है, ये वो जमीन है जो आसमां से मिलती है।